ಈ ದುಃಖಕರ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯಾದ್ರೂ ಪೋಷಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಚಿಂದ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಘಟನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೋವು ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 11 ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದ್ರು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮಗುವಿನ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಶಿಖರವನ್ನ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ? ಅಂದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಚಿಂದ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಸೋನಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ರಿಫ್ ಎಂಬ ಕಫ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಔಷಧಿ ಉಸಿರಾಟ, ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಜ್ವರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಅಂತ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದ್ರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಜ್ವರ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಹೃದಯದ ಸ್ಪಂದನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. ತಪಾಸಣೆಯ ನಂತರ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಸಿರಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕೆಲವು ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಹಾನಿಕರವೆಂದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 11 ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ತೀವ್ರ ನೋವನ್ನ ತಂದಿದೆ. ತಾಯಂದ್ರು, ತಂದೆಯಂದ್ರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿ, ಪೋಷಣೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ದಿನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ನ ತನಿಖೆಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಸೋನಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ತಪಾಸಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಔಷಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವೈದ್ಯರ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಕೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ರಿಫ್ ಸಿರಪ್ ಮಾರಾಟವನ್ನ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿರಪ್ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವೈದ್ಯರು, ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಲೇಬಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಮಾಹಿತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಘಟನೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ, ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. बच्चे को 16 अगस्त को नॉर्मल बुखार आया था, तो हमने 17 तारीख को प्रवीण सोनी क्लिनिक परासिया लेके आए थे. वहाँ पे बच्चे का इलाज करवाया. उन्होंने जो भी सायरप और टैबलेट दिया, 3 दिन तक खिलाए उसको. कुछ आराम नहीं दिखा तो फिर 20 तारीख को फिर लेके आए प्रवीण सोनी के क्लिनिक में. तो 20 तारीख को उन्हें ये कोल्ड ड्रिप सिरप जो अभी न्यूज़ में चल रहा है वो और टैबलेट दिया था. 2 दिन पिलाए बच्चे को. 22 अगस्त से उसको उल्टी चालू हो गई. तो 23 तारीख को हमने सीधा छिंदवाड़ा लेके गए GM श्रीवास्तव के डॉक्टर के पास. वहाँ पे सर ने देखा तो रात भर वहीं विवांता हॉस्पिटल में एडमिट किए. 24 तारीख को बच्चे की यूरिन आना बंद हो गई, तो उन्होंने सीधा नागपुर रेफ़र कर दिए. वहाँ कलर्स हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिए. वहाँ 24 तारीख को वहाँ एडमिट किए बच्चे को. और 24 तारीख से लेके 1 सितंबर तक बच्चे का इलाज चल रहा. इस बीच उसकी 6-7 डायलिसिस भी हुई. और 1 तारीख को शाम को बच्चे ने दम तोड़ दिया था. आपके पास जो जानकारी है उसके आधार पर क्या लगता है, क्या कारण है? क्या कारण रहेगा सर? यही सायरा पे ही है जो अभी चल रहा है न्यूज़ में. उसके पीने के बाद ही बच्चे की तबीयत ज़्यादा हुई थी. जो पहली ये पूरे घटना में पहली मौत, हाँ, पहली मौत मेरे बच्चे की हुई है. जो शासन द्वारा मेरे बच्चे की जो मृत्यु हुई है वो दिखाई नहीं जा रही है टीवी में. जो भी सरकार से हम यही करते कि हमारा सहारा तो छीन गया है. एक लौता बेटा था मेरा, 7 साल का था वो तो चला गया. हमको आगे के लिए कुछ सहारा दे सरकार, हम यही गुजारिश करते हैं. हमारे बच्चे को हल्की सी बुखार आई थी, तो हमने तुरंत सोनी के पास लाए दिखाने के लिए. सोनी जी को दिखाए. सोनी जी ने देखा, पर्ची वगैरह बनाया, तो दवाई लिए तुरंत ही मेडिकल से. उसने बोला दवाई बताए, दवाई तुरंत पिलाए हमने. 40 बूंद बोले थे उन्हें. बूंद मतलब तो 40 बूंद हुई, तुरंत पिलाए. तुरंत पिलाने के बाद बच्चे ने उल्टी कर दिया. उल्टी करने के बाद फिर तुरंत बताए डॉक्टर को, सोनी जी को. तो फिर उसने फिर पर्ची में फिर लिखा इंजेक्शन लगाया बच्चे को. इंजेक्शन लगाने के बाद फिर बोली अब घर चले जाओ, घर में पिला खिला देना था.
घर गए, घर में खिलाया दवाई हमने बच्चे को। बच्चे ने फिर उल्टी कर दिया, बच्चे ने फिर बच्चे की बाथरूम वाले ने रुक गई। बच्चे ने खाना छोड़ दिया तुरंत, कुछ नहीं खा रहा, निस्तार भी बंद हो गया, टॉयलेट वगैरह सब बंद हो गया। फिर देखे बच्चे को, फिर हमने सोनी पास लाया बच्चे को, हमने बोले बाथरूम रुक गई। फिर देखा सोनी जी ने, फिर देखा बॉटल लगाया बच्चे को। बॉटल लगाने के बाद फिर आधे घंटे बाद फिर हमको रिफ़र कर दिया सरकारी अस्पताल परासिया। वहाँ से हमको रिफ़र कर दिया छिंदवाड़ा से हमको नागपुर कर दिया सर। मौत कब हुई? मौत 27 तारीख को हुई सर जी। तो आप किस चीज़ को जिम्मेदार मानते हैं पूरे इसमें घटनाक्रम में? घटनाक्रम में हमको सर जी, हमारा बच्चा बहुत सही था, हमको दवाई से लगा बच्चा, हमारा दवाई से बच्चा खटने पेशाब रुक गई, खाना छोड़ दिया बच्चे ने हमारा, कुछ भी पानी मीना सब छोड़ दिया, जैसे दवाई पिया उसने तो खाना भी छोड़ दिया, निस्तार मतलब टॉयलेट भी बंद हो गई तुरंत ही दवाई पिलाने से। सर 16 तारीख को चंचलेश को फीवर आया था, हल्का सा बुखार थी, तो हमने बोले सर को दिखा लें सोनी सर को। तो सोनी सर जो के लाए, इलाज करवाए, उसको इंजेक्शन भी लगी एक, और 2 सिरप आई थी, गोली भी आई थी। तो शाम को चंचलेश ठीक था, खाना भी खा रहा था और अच्छे लेटरिन बाथरूम भी ठीक हो रही थी उसकी, सिर्फ फीवर था। और जो दवाई पिलाने के बाद में चंचलेश को, एक दिन दवाई पिए, दूसरे दिन से चंचलेश को बुखार आने की नहीं उतरा, तेज हो गया। फिर 18 तारीख को रात में चंचलेश ने उल्टी चालू कर दिया, जो भी कुछ भी खिला रहा था वो सब बाहर, और बाथरूम भी कर रहा था मगर कम मात्रा में, उतनी नहीं हो पा रही थी। फिर 19 तारीख को उसने 5 दिन बाद बुलाया, हमने 4 दिन में ले भागे उसको वहीं, तो बोले यहाँ एडमिट कर दो। हम 19 तारीख को 6 बजे सुबह चले गए थे, तो एडमिट भी किए उसको 12 बजे तक सुबह से, तो उसको कोई आराम नहीं था। वहाँ तकलीफ पेट में ज्यादा होने लगी चंचलेश को, तो हमने बोले कि तकलीफ ज्यादा हो रही चंचलेश को, हमको यहाँ से छुट्टी दे दो, हम कहीं भी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएंगे, बच्चे को दिखवाएंगे। तो बोले हाँ क्या प्रॉब्लम है हमको वो बताओ, कि बच्चे के अंदर क्या है, क्यों आराम नहीं लग रहा। तो उसने बोला कि हल्का सा गुर्दा में सूजन है। तो हमने बोले सूजन है तो आप इलाज कैसे कर रहे हैं, आराम क्यों नहीं लग रहा बच्चे को। तो बोले बड़े डॉक्टर को दिखा लेना। उन्होंने बोले तो हमको छुट्टी, हम चले जाते हैं। तो 19 तारीख को वहाँ से हमने छुट्टी लिए, वहाँ प्रवीण सोनी घर से, और उसने सरकारी का हॉस्पिटल में दिया था ले जाने के लिए। तो हमने बोले कि सरकारी में न ले जाकर बच्चे को प्राइवेट में ले जाएंगे तो हमारा बच्चा जल्दी अच्छा होगा घबराने से। तो हम जैन श्रीवास्तव जो गए थे छिंदवाड़ा में, तो उन्होंने जो फाइल देखी चंचलेश की, तो बोले आपकी बच्चे की कंडीशन बहुत खराब है और किडनी में काम नहीं कर पा रही है, बाथरूम नहीं बन पा रही, इसलिए बाथरूम नहीं हो रही, उसको जल्द से जल्द तुम नागपुर ले जा लो। बच्चे को उसने कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया, तो हमने वहाँ से जल्दी से पैसा की व्यवस्था करके 7 बजे नागपुर के लिए निकल गए। तो सबसे पहले प्राइवेट में ले गया कलश में रहे 1 नाइट 1 दिन पूरे। तो वहाँ भी आने के अनुभव बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर वहाँ से डिस्चार्ज लिया था, हम मेडिकल कॉलेज सरकारी में गए 20 तारीख को। तो वहाँ हुआ उसका ट्रीटमेंट इलाज, मगर बच्चे को आराम नहीं लगा। 26 तारीख को आखिर के बच्चे ने दम तोड़ दी। तो बताइए इस पूरे घटनाक्रम में कौन सी चीज को आप जिम्मेदार मानते हैं, क्या कारण है? प्रवीण सोनी की दवाई हुई, उसी से बच्चा को हुआ है। बाकी मेरा बच्चा स्वस्थ था, कुछ बीमार नहीं था, नहीं हल्का सा फीवर आया था उसको, वो दवाई की वजह से मेरे चंचलेश से ऐसा हुआ है। आज मैं 20 बच्चे की हो गई, मेरा एक ही बेटा था, उसी की दवाई से हुआ है। अभी आपकी क्या मांग है? प्रशासन सरकार कोई सहकार्य करिए आपको? अभी तो कुछ नहीं हुई। आप उसको गिरफ्तार भी कर लिया है, आप क्या कहेंगे? सर क्या हुआ, उसको गिरफ्तार कर लिए तो हम तो जिंदगी हम बिन बेटा के हो गए ना, वो तो आ जाएगा सजा काट कर, मगर हम तो बच्चा मिलेगा क्या हमको वापस? हम तो हो गए ना जिंदगी और बिन औलाद की। 7 साल का था मेरा बेटा, अब एक ही बेटा था, हाथ धो लिए, एक ही बेटा, सब क्या कर रहे हैं हम।